Hello students, welcome to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. I think all of you are keeping very fine and in this video today I will be discussing JEE main questions from the lesson periodic classification of elements. So the question first one I have already written in the board. We will be solving these questions. These questions may look very simple, but then the concept of the lesson should be so clear that you do not do any mistake in solving these questions. So please follow me and listen to me how I explain the concepts, and then let us solve the questions. So first question is, the statement that is not correct for the periodic classification of elements is, first statement is the properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. What do you say? Is this statement correct or not? The properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. This statement is very much true. The reason being, you all know this is the modern periodic law. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था? मेंडलीव ने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास. बट देन लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट atomic mass is a nuclear property. That means atomic mass depends upon neutrons and protons which are present in the nucleus. So atomic mass has got very little effect on the properties of the elements. Properties of the elements depend on the electrons, the number of the electrons present in the valence shell and the electronic configuration of the elements. So mostly he was the scientist. He pointed out that the properties of the elements are the periodic function of their atomic number, not atomic mass, because atomic number is a better fundamental property than compared to atomic mass. Atomic number बोलने से हम क्या समझते हैं? Number of protons present in the nucleus and the number of electrons present in the extranuclear part. So when a element or any substance comes into contact with the reagent के साथ जब वो contact में आता है तो actually the electrons they come into contact with the reagent, because the electrons are present in the extranuclear part. They are more exposed than compared to the protons which are deep seated inside the nucleus. That is why mostly said that atomic number is a better fundamental property than compared to atomic mass. So this statement is very much correct that the properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. Next is, non-metallic elements are lesser in number than metallic elements. This statement is also very much true, because we know that in the periodic table the S block elements, the D block elements and the A block elements all are metals. That means there are 78% metals in the periodic table and only 18 जो है नॉन मेटल्स है. तो नॉन मेटल्स के नंबर एक्चुअली बहुत ही कम है than compared to the number of metals present in the periodic table. So okay, second statement is also correct statement. Let us go to the third statement. The third statement says the fast ionization energy of the elements along a period do not vary in a regular manner with the increase in the atomic number. ये भी बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर आप सेकेंड पीरियड को ले लो, सेकेंड पीरियड स्टार्ट्स विद द एलिमेंट लिथियम. लिथियम से लेकर के आप जैसे जैसे राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियन. दीज आर द एलिमेंट्स. अगर आप पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कैसे होते हैं ये आपको सबको पता ही है. पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इट इंक्रीजेस as we go from left to right in a period. The ionization enthalpy gradually increases. The reason also is known to you. The reason being, as we go left to right, from left to right in the period, the nuclear charge increases and the size decreases, and so the attraction of the nucleus for the electron will be gradually increasing, and that's why you have to give more and more energy for removing the electron from the valence shell. outermost shell से electron को remove करने के लिए
जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर आप पीरियड में आप सोचते हो कि सारे एलिमेंट्स में रेगुलरिटी फॉलो होगा, तो वो गलत है। रेगुलरिटी फॉलो नहीं होता है, रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं करता है, कहीं कहीं जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर एलिमेंट्स दिखाते हैं। एंड ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर एलिमेंट्स दिखाते हैं, जहां पर इंक्रीज होना चाहिए था वहां पर डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कारण है कि रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होता है, रेगुलरिटी फॉलो नहीं होता, मतलब रेगुलर बेसिस में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज नहीं करते जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हो। उसके लिए फटाफट हम आपको बता देते हैं कि सेकेंड पीरियड में अगर आप लिथियम से लेकर के नियन तक अगर जो एलिमेंट्स है उनका आप देखो तो किस तरह से देखो रेगुलरिटी जो है ब्रेक हो रहा है जगह जगह में, वो हम आपको बता देते हैं कि आपका लिथियम है, इसके बाद बेरिलियम है, इसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद नियन। तो लिथियम के बाद बेरिलियम में तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका अगर लिथियम है, ये आपका बेरिलियम है, इंक्रीज होगा। लेकिन बेरिलियम के बाद बोरोन में जो है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर कार्बन में इंक्रीज होगा, यहाँ पे अगर कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन में भी इंक्रीज हो जाएगा, नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन में डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद फिर फ्लोरीन में इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर नियन में और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन है सेकेंड पीरियड में हम देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि बेरिलियम से बोरोन में, जबकि बोरोन का एटॉमिक नंबर बेरिलियम से ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों कर गया? The आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हियर, रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखो तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेरिलियम का है 1s2 2s2, ए वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। इट्स नॉट दैट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हो कि बोरोन के लिए एनर्जी जो देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो कम होगा देन कंपेयर टू बेरिलियम, बिकॉज बेरिलियम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू बोरोन। और एक तरीका है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड शेल में ही एस के इलेक्ट्रॉन और पी के इलेक्ट्रॉन में से पेनिट्रेटिंग इफेक्ट अगर आप कंपेयर करो, देन वी नो दैट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो है एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन कंपेयर टू द पी इलेक्ट्रॉन्स। और पेनिट्रेटिंग अगर ज्यादा होगा तो उसको न्यूक्लियस भी बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा, उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा। सो एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग towards the nucleus then compared to the p electrons. So p इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सेम शेल का s से अगर आपको s के कंपैरिजन में p का इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना है तो आपको कम एनर्जी देने से p इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। So this is how with the help of these two explanation you can understand why the first ionization enthalpy of boron is less than that of beryllium। तो यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद देखो कार्बन में इंक्रीज हुआ, बोरोन के बाद नाइट्रोजन में भी इंक्रीज हुआ, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में क्यों डिक्रीज हो गया? बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4। तो देखो 2p ऑर्बिटल जो है जिसमें 2px 2py और 2pz है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ नाइट्रोजन। सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन द 2p सबशेल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नॉट सो। कोई ऐसा हाफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड वाला बात ऑक्सीजन में नहीं है। जो नाइट्रोजन है उसमें एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2p सबशेल में, जिसके कारण नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। वी ऑल नो दैट एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इन ए सबशेल और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इन ए सबशेल गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एटम। सो दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ता है देन कंपेयर टू ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर नाइट्रोजन से ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है, फिर भी ऑक्सीजन के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका स्टेबल नहीं है इतना, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आता है, न्यूक्लियर चार्ज उससे कम है ऑक्सीजन से,
एटॉमिक नंबर भी लेस है, फिर भी नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन के केस में आपको देना पड़ेगा जो है ज्यादा अमाउंट में एनर्जी। तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, दैट इट डज नॉट फॉलो अ रेगुलर ट्रेन, फास्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी along a period do not follow रेगुलर ट्रेन फॉलो नहीं करते हैं विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी सबशेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मोनोटोनिकली इस वर्ड का मीनिंग आप समझ सकते हो रेगुलरली, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, उसी को ही हम मोनोटोनिकली यहाँ पे समझेंगे। इस वर्ड का मीनिंग मोनोटोनिकली मतलब रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली जो है इलेक्ट्रॉन जो है फिल होता जाएगा, ऑर्बिटल फिल होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज होता जाएंगे। अगर आप इसको समझने के लिए अगर आप 3D सीरीज के एलिमेंट्स को ले लो तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स में आप देखोगे जो रेगुलरिटी है डी सबशेल का फिलिंग का जो रेगुलरिटी है वो ब्रेक होता है इन कॉपर एंड इन क्रोमियम। पहले क्रोमियम में ब्रेक हो जाता है, उसके बाद कॉपर में ब्रेक हो जाता है। तो उसको हम समझते हैं कि कैसे रेगुलरिटी यहां पे ब्रेक हो जाती है। तो लेट्स सी, let us write the electronic configuration of the 3D series elements। 3D सीरीज में ये आपका 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, दीज आर द एलिमेंट्स। तो इसके स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन कोर 4s2 3d1। टाइटेनियम में हो जाएगा आर्गन कोर 4s2 3d2। वैनेडियम में हो जाएगा आर्गन कोर 3d3 4s2। क्रोमियम में होना चाहिए आर्गन कोर 3d4 4s2। पर जो क्रोमियम है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये नहीं है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का नहीं है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d5 4s1। ये क्यों? 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाता है, 3d का एनर्जी 4s से थोड़ा सा हाई है, फिर भी वो शिफ्ट हो जाता है क्योंकि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है डी सबशेल में, d5 कॉन्फ़िगरेशन, उसके कारण क्रोमियम को मिलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन 4s से शिफ्ट होकर के लिटिल हायर एनर्जी ऑर्बिटल 3d में शिफ्ट हो जाता है ताकि एटम को d5 कॉन्फ़िगरेशन मिले। तो यहाँ पे देखो जो रेगुलरिटी था वो रेगुलरिटी मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन 3d में आ रहा था। स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, वैनेडियम में 3, इसमें 4 होना चाहिए था लेकिन इसमें 5 हो गया है। उसी तरह से अगर आप कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन कोर 3d9 4s2, पर इसका कॉन्फ़िगरेशन भी ये वाला नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d10 4s1। 3d10 4s1 यहां भी वही बात है, completely filled configuration in the 3d gives extra stability to copper atom, that's why एक इलेक्ट्रॉन 4s से शिफ्ट होकर के 3d में आ जाता है ताकि d10 कॉन्फ़िगरेशन मिले कॉपर को और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। तो ये दो केसेस में हम देख सकते हैं कि d ऑर्बिटल का जो फीलिंग है मोनोटोनिकली जो है वो नहीं होता है, मतलब लगातार इंक्रीज नहीं होता है, कहीं कहीं जो है रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपको यही पूछा कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द periodic classification of the element, so this statement is not correct. So let us go to the next question. Second question, the IUPAC symbol for the element with atomic number
119 would be number 1 UUH, number 2 UUE, number 3 UUN, and number 4 UNE. You must be remembering the IUPAC nomenclature system for the naming of the element and for assigning the symbol to the elements having atomic number greater than 100. तो इसके पीछे हिस्ट्री आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। हिस्ट्री ये है कि 100 से लेकर के 114 तक एलिमेंट्स जो है उनका IUPAC, उनका जो नेम है और सिंबल है ये असाइन कर दिया गया था, लेकिन यूनिवर्सली ये चीज एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बहुत सारे एलिमेंट्स के केस में दो दो नाम, दो दो सिंबल जो है साइंटिस्ट असाइन कर रहे थे। तो जैसे कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, इस एलिमेंट का डिस्कवरी का क्रेडिट क्लेम कर रहे थे दोनों देश के साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट as well as Soviet scientists. Both of them, Soviet scientists as well as American scientists, both of them, they were claiming the credit of discovering the element with atomic number 104. American scientists ने इसका जो नाम दिया था वो नाम दिया था रदरफोर्डियम और उसका सिंबल RF दे दिया था। वही जो सोवियत साइंटिस्ट है, सोवियत साइंटिस्ट ने क्लेम किया ये एलिमेंट हमने डिस्कवर किया और उन्होंने इसका नाम दे दिया कुर्चाटोवियम और सिंबल उसका KU दे दिया। तो ये जो डिस्प्यूट था, ये जो प्रॉब्लम्स था, इसको सॉल्व करने के लिए IUPAC ने एक कमीशन को अपॉइंट किया। इस कमीशन का नाम है CNIC, कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उनको कहा कि एक रैशनल सिस्टम डेवलप करो फॉर द नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, और उन्होंने वो किया। और उसके बाद उन्होंने जो किया वो है एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट का जो नेम है और सिंबल है डिराइव करने का एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। एटॉमिक नंबर में जो न्यूमेरिकल्स है, जो न्यूमेरिकल रूट्स है, वो उन्होंने स्पेशल न्यूमेरिकल रूट्स को यूज किया, जैसे कि 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। ये उन्होंने जो न्यूमेरिकल रूट्स जो है उन्होंने दिया, एक एक नंबर को, एक एक डिजिट को उन्होंने इस तरह से न्यूमेरिकल रूट्स दे दिया, और एटॉमिक नंबर से ही नेम एज वेल एज जो है सिंबल उन्होंने डेवलप किया, असाइन किया एलिमेंट्स को। तो जो नेम्स है उनका उन्होंने सिस्टम बनाया कि लास्ट में यम ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि 111 अगर है, देन व्हाट विल बी द नेम? अनियम। तो इस तरह से नेम होगा, सिंबल क्या हो जाएगा? हर एक रूट से एक एक लेटर लेकर के सिंबल हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम 119 जिसका एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का हम अगर सिंबल निकालना चाहे तो पहले तो हम इसका नेम हम जो है बना लें कि व्हाट इज द नेम। नेम विल बी 119, एटॉमिक नंबर मीन्स नेम क्या हो जाएगा? एनियम। एनियम, आन 1 के लिए, दूसरा आन भी, दूसरा 1 के लिए, और 9 के लिए एन, और उसके साथ यम ऐड करके आन एनियम हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द सिंबल? सिंबल हो जाएगा UUE, U फ्रॉम अन, अनदर U फ्रॉम अन और E फ्रॉम एन। तो इस तरह से सिंबल हो जाएगा UUE। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नंबर 3, द ग्रुप नंबर of valence electrons and valency of an element with atomic number 15 respectively are number 1 16,
5 and 2. Number 2, 15, 5 and 3. Number 3, 16, 6 and 3. And number 4, 15, 6 and 2. तो 15 जिसका एटॉमिक नंबर है उसका ग्रुप वो कौन सा ब्लॉक का होगा वो हम निकालना जानते हैं, वो उस तरह से हम निकालेंगे वो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होगा। और ग्रुप का एलिमेंट जानने के बाद हम उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बता सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताने से हम उसका वैलेंस भी बता सकते हैं। तो पहले तो इस एलिमेंट का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। सो आंसर इसका ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हिच शेल इज अ वैलेंस शेल, थर्ड शेल इज अ वैलेंस शेल। एंड व्हिच ब्लॉक एलिमेंट इट विल बी। ब्लॉक डिसाइड करने के लिए, ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, आपको देखना होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में रिसीव हुआ है। यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो p ऑर्बिटल में रिसीव हुआ है, 3s2, 3p3, 3s स्पेल्ड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो रिसीव हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 3p में रिसीव हुआ है। दैट मींस इट इज ए p ब्लॉक एलिमेंट। और p ब्लॉक एलिमेंट के केस में ग्रुप नंबर कैसे हम निकालते हैं, ग्रुप नंबर के लिए हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है, रिमेंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में यहाँ पे s के इलेक्ट्रॉन p के इलेक्ट्रॉन दोनों जोड़ा जाएगा। एस के सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस शेल इज अ थर्ड शेल, उसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ आपको 10 जोड़ना होगा फॉर डिसाइडिंग द ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका, 15। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ 10 ऐड कर दो तो 15 विल बी द ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर हो गया 15। और जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी हमने देख लिया, 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी, वैलेंसी इज सिंपल। आपको पता है कि जब वैलेंसी निकालना होता है तो हमें इन केसेस में जहां पर 4 से ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो 8 माइनस करके हम जो है वैलेंसी निकालते हैं। तो इसकी जो है वैलेंसी क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर विल बी 15 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर will be 5 and valency will be what, valency will be equal to 8 minus 5, that means it will be 3. So which option is correct, this option is correct, 15, 5 and 3, these are the group number, valence electrons and valency. Which question it was, 4 I think. The correct option with respect to the Pauling electronegativity values of the elements is number 1 P greater than S, number 2 SI less than AL, number 3 TE greater than AC, number 4 GA लेस देन GE। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स आप देख लो, ये जो एलिमेंट्स है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स है। और ग्रुप्स जो है 13 से लेकर के 16 तक में ही आएंगे ये एलिमेंट्स। तो पहले मैं इनका पीरियड्स और ग्रुप्स लिख करके फिर मैं आपको बताऊंगी ये कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन।
तो पीरियड हम लिख लेते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और हम ग्रुप्स लिख लेते हैं ग्रुप 13, ग्रुप 14, इसका हम आंसर कर रहे हैं, ग्रुप 15, ग्रुप 16। तो थर्ड पीरियड में 13 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होगा? एल्यूमिनियम, ये हमने कर लिया। और ग्रुप 14 में कौन होगा? सिलिकॉन, सिलिकॉन भी हमने कर लिया। ग्रुप 15 में होगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस लिख लो। ग्रुप 16 में होगा सल्फर, ये हमारा हो गया है। अब जो है ग्रुप फोर्थ पीरियड में ग्रुप 13 में कौन आएगा? ये गैलियम आएगा, गैलियम। उसके बाद सिलिकॉन के नीचे कौन आएगा? जर्मेनियम। उसके बाद फास्फोरस के नीचे कोई नहीं है ग्रुप 15 में। 16 में जो है ये दोनों हैं, हमने गैलियम कर लिया, जर्मेनियम भी हमने कर लिया। ग्रुप 16 में सल्फर के नीचे आएगा सेलेनियम और टेलुरियम। सेलेनियम आएगा फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में आएगा टेलुरियम। अब एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन चेक करने से पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से पीरियड में और ग्रुप में वेरी करती है वो याद कर लो। आपको पता है कि left to right, if you go in the period, then electronegativity gradually increases. Why? Because nuclear charge increases, size decreases, so attraction for the electron increases. That's how we can say that when you move across the period, electronegativity gradually increases. And in a group what happens? As you go down the group, from top to bottom as you go, size of the atoms increases and so nucleus का attraction for the electron that will gradually decrease. So electronegativity will gradually decrease as you will go down the group. तो दो चीज हमें याद रखना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर हमें जो दिया गया है कि इसका इससे ज्यादा है, इसका इससे कम है, इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना होगा कि जो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन होता है वो कैसे भी वेरी करते हैं और ग्रुप में कैसे वेरी करते हैं। पीरियड में जैसे आप लेफ्ट से राइट चलते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड ग्रुप में एज यू गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। रीजन भी हमने आपको बता दिया, पीरियड में साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और ग्रुप में साइज इंक्रीज हो जाते हैं और जो है साइज इंक्रीज हो जाने की वजह से अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये रीजन फॉलो करते हुए, ये ट्रेंड फॉलो करते हुए करेक्ट ऑप्शन देख लो। तो पहला जो है हमारा फास्फोरस और सल्फर, पोजीशन देख लो। फास्फोरस ग्रुप 15 में है, सल्फर जो है ग्रुप 16 में है। तो फास्फोरस का सल्फर से ग्रेटर दिखाया, ये गलत है क्योंकि फास्फोरस का सल्फर से लेस होगा। बिकॉज सल्फर जो है स्मॉलर है साइज में, न्यूक्लियर चार्ज भी सल्फर का ज्यादा है, तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फास्फोरस से ज्यादा होगा। तो नंबर 1 ऑप्शन इज रॉन्ग। नंबर 2 में सिलिकॉन का बताया है, सिलिकॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखो, सिलिकॉन ग्रुप 14 में आ रहा है और ग्रुप 13 में आ रहा है एल्यूमिनियम। पीरियड में हमें पता है कि पीरियड में जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलते हैं तो ग्रेजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो है ग्रेटर दिखाया, ये गलत है, एल्यूमिनियम का ग्रेटर नहीं है, सिलिकॉन का ही ग्रेटर है बिकॉज सिलिकॉन बाद में आ रहा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में टेलुरियम और सेलेनियम। सेलेनियम और टेलुरियम में कौन नीचे है? टेलुरियम नीचे है। तो टेलुरियम का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेलेनियम से ज्यादा नहीं है बिकॉज ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो द टेलुरियम हैज गॉट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कंपेयर टू सेलेनियम। सो ये भी गलत है। जो लास्ट ऑप्शन है गैलियम हैज गॉट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन जर्मेनियम, दैट इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज गैलियम पहले आता है, जर्मेनियम बाद में। पीरियड में जो है जैसे आप चल रहे हो तो गैलियम पहले आ रहा है, जर्मेनियम बाद में आ रहा है, तो गैलियम से जर्मेनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज हाउ वी हैव chosen the correct option